This is lesson number one. A topic is functions. First, I will define what are the functions. फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं. What is function? A function is a relation that associates uniquely associates members of one set, members of one set with members of other set. This is the definition of function. An alternative name for the function is mapping. Mapping is an other name of function. फंक्शन को हम मैपिंग भी कह देते हैं. नो टाइप्स ऑफ, ये देखिए फंक्शन इज अ रिलेशन, तो देयर आर टाइप्स ऑफ रिलेशंस. Types of relations. There are three types of relations. Number one, one-to-one relation. One-to-one relation. Number two, many-to-one relation. Many-to-one relation. Number three, one-to-many relation. Now I will give you examples of each. Number one, one-to-one function, one-to-one relation. Let's see an example. That is example number one. This is for one-one function. One-one function या one-to-one function. इसके लिए एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल वन, सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. और यहाँ देखें, जब भी फंक्शन गिवन होगा तो उसके साथ एक्स की वैल्यू गिवन होती है. एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. इसको पढ़ते हैं एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो दिस इज रियल नंबर. ऑल नंबर्स रेशनल plus irrational numbers are called real numbers. So this is the domain given. X belongs to a real number. This is the domain of the function. Whenever the function is given, the domain must be there. Fx is equal to x plus 2 is a one-one function. Is a one-one function.
इसके लिए देखते हैं इसका स्केच. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्केच दिस. This is a sketch of this फंक्शन. ये फंक्शन देखिए, ये लीनियर फंक्शन है, तो इससे लाइन बनेगी. द y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज 2. क्लियरली y इंटरसेप्ट इसका 2 है. यहाँ से लाइन ने पास करना है, और सिंस द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव तो इट विल मेक एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो ये लाइन जो है बनेगी हमारे पास. दिस इज द लाइन्स. दिस इज अ फंक्शन. इसको फंक्शन भी बोलेंगे. ये स्ट्रेट लाइन है. अब हमने देखना ये है ये 1-to-1 फंक्शन कैसे है. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो इसके अगेंस्ट ये y की वैल्यू है, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे x की वैल्यू है, तो उसके अगेंस्ट y की हमारे पास वैल्यू ये आएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू है, तो उसके अगेंस्ट y की वैल्यू हमारे पास ये आएगी. अब इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू है, तो उसके अगेंस्ट y की ये वैल्यू आएगी. तो आप देख रहे हैं कि सिंगल वैल्यू ऑफ x इज मैप्ड ऑन टू ए सिंगल वैल्यू ऑफ y. तो सो such types of functions are called 1-to-1 function. तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये 1-to-1 फंक्शन है फॉर द गिवन डोमेन x belongs to real number. दिस इज द एग्जांपल ऑफ 1-to-1 फंक्शन. ये देखें, यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ मैंने y एक्सिस लिखा हुआ है. y एक्सिस को आप fx भी लिख सकते हो. यहाँ देखें, इसको आप fx भी लिख सकते हो. fx मीन y. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ 1-to-1 फंक्शन. नाउ नेक्स्ट इज मैनी टू वन रिलेशन. उसके लिए एग्जांपल नंबर 2. एग्जाम्पल 2, मैनी टू वन रिलेशन. ये देखें, ऊपर जो हमने किया है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये टेबल बना के भी दिखा सकता हूँ कि सपोज हमारे पास अभी ये हमने इसका स्केच बनाया है. दिस इज फंक्शन fx is equal to x plus 2. If we construct a table, this is x and this is fx. fx या y एक ही बात है. Suppose we are taking different values of x. Suppose we are taking x 0, 1, 2, 3, 4, 5. So when we put x is equal to 0, we will get the value of y is 2.
when we put x is equal to 1, we will get y is equal to 3. For x is equal to 2, we will get 4. For 3, we will get 5. For 4, we will get 6. For 5, we will get 7. अब देख रहे हैं a single value of x is mapped onto single value of y. 0 is mapped onto 2, 1 is mapped onto 3, 2 is mapped onto 4, 3 is mapped onto 5, 4 is mapped onto 6, 5 is mapped onto 7. A single value of x is exactly mapped onto single value of y. Such types of relations are called one-to-one relation या one-to-one function. Now next is example number 2. Example 2. This is for many to one function. Many to one function. Many to one function. Suppose we have a function fx is equal to, this is an example to understand this, fx is equal to x square. This is a quadratic function. The domain of this function is x belongs to real number. X belongs to real number. This is a many to one function. Is a many to one function. तो अब हम देखते हैं कि ये many to one function कैसे है. तो let's see the sketch of this function. The sketch of this function is this. This is a quadratic function. तो टर्निंग पॉइंट है 0 0. तो मैं इसका स्केच बनाता हूँ. ये इसका स्केच आएगा. दिस इज स्केच ऑफ दिस. पैराबोलिक फॉर्म में ये कर्व बनता है. और अब हम देख रहे हैं इफ वी आर टेकिंग value on x-axis 1, we will get the value of y is 1. देखें x वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 1 आएगी. अगर हम -1 पुट करते हैं तो ये -1 पुट करते हैं तो फिर भी हमारे पास y की वैल्यू जो है -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू जो है फिर भी 1 ही आती है. तो आप देख रहे हैं कि x की 2 वैल्यूज़ के लिए हमारे पास y की वैल्यू 1 आती है. फॉर 2 वैल्यूज़ ऑफ x
there is only one value of y. Such types of functions are called many to one function. एक और वैल्यू लेके देखते हैं. सपोज 2 is here, this is 2 के अगेंस्ट और -2 के अगेंस्ट यहाँ पे -2 है. तो x2 पुट करते हैं हम तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती है. -2 पुट करते हैं तो फिर भी जो है वो 4 ही आती है. तो सो ये देखें यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं कि 2 वैल्यूज़ ऑफ x के लिए सेम वैल्यू ऑफ y आ रही हैं. तो सच टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन. इसके लिए मैं टेबल आपको बना के दिखाता हूँ. ये टेबल में देखें ऊपर फिगर में जो वैल्यूज़ ली हैं उसके अगेंस्ट हम टेबल बना के देखते हैं. दिस इज x, दिस इज f(x). ये देखें हमने 1 पुट किया है, उसमें इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास 1 ही आया है. अगर हम -1 पुट करेंगे तो फिर भी हमारे पास 1 ही आता है. तो इसी तरह अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास y वैल्यू 4 आती है. -2 से भी हमारे पास 4 ही वैल्यू आती है. तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू 1 पुट करें या -1 पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यूज़ 1 ही आती है सेम. 2 x की वैल्यूज़ 2 या -2 पुट करें तो फिर भी y की वैल्यू 4 या दोनों केसेस में 4 आती है. तो ये ऊपर वाली एग्जांपल जो है उसको ये क्लियर कर देता है. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 फॉर 1 to many relation. 1 to many relation. 1 to many relation ये देखें इस में ये नाम से इसके रिप्रेजेंट हो रहा है कि 1 to many रिलेशन एक x की वैल्यू के लिए 2 y की वैल्यू जब आ जाएं इसको 1 to many रिलेशन कहते हैं. तो ये एक जस्ट एक रिलेशन होता है बट नॉट अ फंक्शन. सिंस फॉर 1 इनपुट वैल्यू कहते हैं x की वैल्यू को. सिंस फॉर 1 वैल्यू ऑफ x देयर आर 2 आउटपुट वैल्यूज़. I mean 2 y's values. तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन. इसके लिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. सपोज y² इज इक्वल टू x. तो इसके लिए स्केच होगा. ये इसका स्केच होगा.
this is a sketch of this function, this relation y वैल्यूज़ x एक्सिस, तो ये इसका स्केच होगा। तो दिस इज द स्केच ऑफ वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे आप ये ग्राफ आपका है वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम यहाँ कहीं भी 4 ले लेते हैं। सपोज 4 इज हेयर। अब उस 4 के अगेंस्ट दिस इज सपोज दिस इज 4 के अगेंस्ट एक वैल्यू y की ये आती है और दूसरी वैल्यू y की हमारे पास ये आती है। दिस मीन्स दैट फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ x देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ y। तो ये आप कह सकते हैं कि in this equation if we put x is equal to 4, यहाँ देखें अगर मैं यहाँ पे x को 4 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो सो दिस इज -2 से दिस ग्राफ sketch is not drawn to a scale. This is -2 और दिस इज 2। आपने देखना ये है कि यहाँ पे एक x की वैल्यू के लिए 2 वैल्यूज ऑफ y आई हैं। तो सो दिस इज 1 to many रिलेशन। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है। 1 to many relation is not a function, not function. So next I will give you the concept of domain of the function and range of the function. This is very important. Domain of the function, इसको मैं डिफाइन करता हूँ। व्हाट इज domain of function? The set of, this is the definition of this, the set of input values for a function is called the domain of the function. The set of input values for a function is called domain of the function. ये देखिए इनपुट वैल्यूज जो हैं ये एक्स वैल्यूज को कहते हैं। The set of input values for a function is called the domain of the function. This means that x values को हम किसी भी फंक्शन की x values को हम डोमेन कहते हैं। इन द सेम वे रेंज हम फिर y values को कहेंगे। तो रेंज ऑफ द फंक्शन द सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज y वैल्यूज को कहते हैं। द सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज फॉर द फंक्शन is called the range of the function
लेट्स सी एन एग्जांपल। यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज we have a function is fx is equal to x plus 2। दिस इज अ फंक्शन। हम इसके लिए टेबल बनाते हैं। ये डिफरेंट वैल्यूज़ लेके मैं आपको दिखाता हूँ। Suppose the values of x are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। The values of fx, the values of function या y की वैल्यूज़ आएंगी। x को 0 पुट करेंगे तो 2 आएगी वैल्यू ऑफ y, 1 पुट करेंगे तो 3 आएगी, 2 पुट करेंगे तो वी विल गेट 4, 3 पुट करेंगे 5, 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 6 आएगी, ये 7 और ये 8। ये देख रहे हैं आप, सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x ये हैं हमारे पास, सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x 0 to 6। दिस सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x आर कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये आपके पास फंक्शन की डोमेन है। इसको मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूँ। दिस इज डोमेन, डी फॉर डोमेन। एंड द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ y या fx, दिस इज अ सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ y। This set of values of y is called the range of the function। रेंज को हम r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये होती है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज वी हैव अ फंक्शन और डोमेन उस फंक्शन की गिवन है। एग्जांपल, for domain and range of the function, this is example, fx is equal to 5 minus 2x and the domain of the function is x lies between -4 and 5. This is the domain of the function. We have to write down the domain of the function, sketch of the function and range of the function. आपने इसकी डोमेन तो गिवन है, x की वैल्यूज़ को डोमेन कहते हैं, -4 से 5 तक। इसकी रेंज क्या होगी, इसको स्केच करते हैं पहले। तो देखें, दिस इज़ अ लीनियर फंक्शन, लाइन की इक्वेशन बनेगी। तो लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, इसमें स्केच करते हैं हम। ये इसका स्केच बनेगा। This is a sketch.
एक्स वाई ओरिजिन, ये देखिए यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट 5 है हमारे पास और ग्रेडियंट इज नेगेटिव, तो वाई इज द 5 इज द वाई इंटरसेप्ट. Suppose this is 5. Suppose this is 5 and the line is this. Gradient, since the gradient is negative, it will make an obtuse angle. So this is the line of 5 minus 2x. तो अब हम देखते हैं कि डोमेन इसकी, ये देखिए ये डोमेन आपको गिवन है, दिस इज द डोमेन. हमने देखना है इसकी रेंज क्या होगी. तो हम x को -4 पुट करते हैं यहाँ इस इक्वेशन ऑफ लाइन में. x को हम -4 पुट करते हैं क्योंकि डोमेन जो है -4 से शुरू होती है. -4 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 13 आ जाती है. इसी तरह अगर हम आखिरी वैल्यू जो डोमेन की वो 5 है तो x को 5 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो -5 आती है. अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट्स कहाँ पे आते हैं. x -4 है तो y हमारे पास 13 आता है. ये देखें -4 पे y की वैल्यू 13 आती है. तो सो ये देखें ये पॉइंट है -4 13. यहाँ पे हम लिखते हैं -4 13 और अगर हम x को 5 पुट करते हैं तो दिस इज -4 और y की वैल्यू 13 है. यहाँ पे x 5 है तो y की वैल्यू जो है यहाँ पे -5 है. तो दिस पॉइंट इज 5 -5. तो एंड पॉइंट्स इस लाइन के हमने फाइंड कर लिए हैं. तो अब हम देखते हैं कि डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है. डोमेन तो आपको पहले मेंशन है -4 to 5. ये देख रहे हैं इस लाइन के लिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है. ये x वैल्यू जो है -4 से लेके -4 to 5. दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड द रेंज हमें कैसे मिलेगी. वो y की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक चेंज होती हैं. वो y की वैल्यूज़ जो है हमारे पास -5 मिनिमम वैल्यू जो है वो आप देख रहे हैं दिस इज -5 और मैक्सिमम वैल्यू y की है 13. तो ये मैं यहाँ ऐसे मेंशन करता हूँ रेड लाइन कलर से. दिस इज रेंज, ये रेंज है हमारे पास. y की वैल्यूज़ इस लाइन के लिए -5 से लेके 13 तक चेंज होती हैं. तो लिखना है इसको कैसे है. तो डोमेन तो ऑलरेडी गिवन है. डोमेन ऑफ द फंक्शन इज domain of f for function, domain of function is given, that is x lies between -4 and 5. This is the domain which is already given and the range of the function अभी हमने इसको फाइंड कर लिया है वैल्यूज़ पुट करके. रेंज ऑफ फंक्शन दैट इज़ उसको यूँ लिखेंगे कि f(x) की वैल्यूज़ हमारे पास -5 से लेके
13, this is the way to write the range of the function. तो ऐसे ये हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। तो इसके लिए एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। Now there is a curve. This is another example of domain and range. ऊपर वाली एग्जांपल को हम एग्जांपल नंबर 1 कह लेते हैं फॉर डोमेन एंड रेंज, और दिस इज एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। तो हमारे पास एक फंक्शन है f(x), वो कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म में लिखा हुआ है x-3। दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन रिटन इन कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म, वो आप पहले सीख चुके हैं। दिस इज द फंक्शन, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x lies between -1 to 9. This is the domain of the function. This is the domain of the function. तो इसको हम स्केच भी करते हैं। हमने इसकी फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। तो इसको स्केच करेंगे तो उसके लिए हमें वर्टेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है। और हम इसको स्केच करते हैं। तो ये इसकी स्केचिंग हो जाएगी। तो ये डोमेन जो है -1 to 9 है। तो इसका मिनिमम पॉइंट जो है, इस पर ये देख रहे हैं आप, इसका टर्निंग पॉइंट जो होता है, ये टर्निंग पॉइंट फाइंड हम ऐसे करते हैं। तो -3 है तो उसको हम 3 ले लेते हैं। 8 इज़ द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट टर्निंग पॉइंट। तो सपोज टर्निंग पॉइंट इज ऑफ दिस 3, 8 इज हेयर। 3, 8, दिस इज 3, दिस इज 8। सपोज, फिर से बता रहा हूँ, दिस ग्राफ इज नॉट ड्रॉन टू द स्केल। तो दिस इज द टर्निंग पॉइंट। अब हमने इस ग्राफ को अपनी डोमेन के हिसाब से बनाना है, -1 to 9। तो ये देखिए -1 यहाँ पे है, यूं बन जाएगा। सपोज दिस इज 9। तो ये हमारा ग्राफ है। ये टर्निंग पॉइंट इसका मैं दोबारा से लेता हूँ। सपोज द टर्निंग पॉइंट इज हेयर, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। सपोज दिस इज 3 और दिस इज y की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट। तो 3, 8 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, 3, 8 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम देखते हैं, इसकी डोमेन है -1 to 9। तो ये आपके पास पॉइंट आएगा, ये मैंने मार्क कर दिया कि हमारा जो है यहाँ पे -1 है x, क्योंकि डोमेन हमारी -1 से 9 तक जाती है। तो ये हमारे पास डोमेन का दूसरा एंड है, 9 है। तो
ये पॉइंट हम -1 पुट करते हैं तो उस कर्व की इक्वेशन में, तो ऊपर वाली इक्वेशन में -1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है वाई की 24। तो दिस पॉइंट इज -1 24। इसी तरह इक्वेशन ऑफ कर्व में हम 9 पुट करते हैं एक्स की वैल्यू, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई दैट इज़ 44। तो दिस पॉइंट इज 9 44। तो अब हमने इस फंक्शन की डोमेन तो देखिए गिवन है, हमने रेंज बताना है कि इस फंक्शन की रेंज क्या है। तो रेंज हम y की वैल्यू को कहते हैं। इस फंक्शन के लिए y की मिनिमम वैल्यू, ये ग्राफ की मिनिमम वैल्यू जो है y की, वो हमारे पास है 8। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्राफ या फंक्शन, ये 8 है। और मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो ये है y की, ये देख रहे हैं आप, ये वैल्यू जो है 44 है। तो ये हमारे ग्राफ का जो y है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, वो 8 से लेके 44 तक जाता है। तो ये हमारी रेंज होगी, यहाँ पे मैं इसकी रेंज मेंशन कर रहा हूँ। ये हमारी रेंज है, दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। उसको हमने लिखना कैसे है, रेंज ऑफ फंक्शन इज f(x) 8 to 44। This is the range of the function.